ہمارے جو تیسرے گورنر جنرل تھے غلام محمد صاحب, ان کی سیکرٹری تھی روز بورل, وہ میرا خیال سے سوئٹزرلینڈ سے تھی یا جنیوا سے کہیں تھی. تو وہ جب گورنر ہاؤس میں, آپ کو پتا فالج ہو گیا تھا ان کو, جو تیسرے گورنر جنرل تھے پاکستان کے, تو ان کو جب وہ چمچے سے کچھ کھلاتی تھیں یا پلاتی تھیں وہ, تو وہ گورنر جنرل ہاؤس میں وہ کہتے تھے کہ آہستہ سے, ان کی آواز بھی صحیح بولا بھی نہیں جاتا, تو آہستہ سے کچھ بڑبڑاتے تھے. تو وہ نرس پاس آتی تھی, کہتی تھی کیا, تو وہ اپنے تکیے کے نیچے سے ایک تصویر نکال کے کہتے تھے کہ میں جو بھی کچھ ہوں اس آدمی کی وجہ سے ہوں. اچھا, وہ تصویر ایک آدمی کی, ایک صاحب کی تھی جن کا نام تھا حاجی وارث شاہ. وہ حاجی وارث شاہ لکھنؤ کے پاس ایک جگہ دیوا شریف, وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ وہیں ان کی تدفین ہو گئی. تو غلام محمد صاحب گورنر جنرل بننے سے پہلے وہاں ان کے مزار پہ جایا کرتے تھے. بہرحال جب گورنر جنرل بن گئے تو پھر وہاں سے متولی کو ساتھ لے آئے اور وہ ہمیشہ گورنر جنرل ہاؤس میں رہا ان کے ساتھ. اب جب بھی کوئی کرائسس آتا تھا تو یہ اس متولی سے کہتے تھے کہ تم بابا جی, یعنی جو بابا جی جو بزرگ جو دنیا سے چلے گئے, وہ ان کے درمیان رابطے کا کام کرتا تھا. وہ جو متولی تھا وہ کہتے تھے تم ذرا مجھے بابا جی سے پوچھ کے بتاؤ کہ بابا جی کیا کہتے ہیں. تو بابا جی نے کہا تو اسمبلیاں ٹوٹ گئیں. ایسا بھی ہوا, بابا جی نے کہا وزیر ہٹا دیے گئے. بابا جی کے کہنے میں سارا کام کرتے تھے غلام محمد. اور جب آخری دن تھے ان کے گورنر جنرل شپ کے, تو یہ اپنے باغ میں بیٹھ کے, بیمار تھے تو باغ میں بیٹھ کے یہ اپنے سارے گورنر جنرل ہاؤس کے جو ملازمین ہیں ان کو اکٹھا کرتے اور پھر اس کے بعد کہتے کہ اچھا یہ تم اس چیز کے وزیر ہو, تم اس چیز کے وزیر ہو, تمہیں بھی وزارت دے رہا ہوں. یہ عجیب ان کا ذہن بھی ان کا جو تھا وہ صحیح نہیں تھا, ذہنی حالت بھی. تو وہ جو متولی تھا وہ ایک دن آیا پاس اور پاس آ کے کہتا ہے کہ جی وہ بابا جی آپ سے بڑا سخت ناراض ہو گئے. اچھا, جب اس نے یہ بات کی تو گورنر جنرل غلام محمد نے سنی بات, اور سننے کے بعد یہ ہوا کہ 2-4 دن کے بعد ہی ان کو سکندر مرزا نے ہٹا دیا. اب ان کے جو ڈاکٹر تھے کراچی میں وہ شفٹ ہو گئے اپنی بہن کے گھر, تو ان کے ڈاکٹر تھے کرن سرور. وہ اپنی جو یادداشتیں ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ اپنے انتقال سے چند روز پہلے تک جو گورنر جنرل تھے ہمارے تیسرے غلام محمد صاحب, وہ کہتے تھے کہ مجھے کسی طرح سے ایک چارٹر پلین کر دو تو میں لکھنؤ کے وہ دیوا شریف پہ چلا جاؤں, اور ہو سکتا ہے بابا جی مان جائیں, وہ راضی, وہ مجھ سے ناراض ہو گئے, وہ راضی ہو جائیں تو میں پھر گورنر جنرل بن جاؤں گا. یعنی اس حد تک جو گورنر جنرل کا بلیف تھا. اچھا, اب میں اسے تھوڑا آگے آ جاتا ہوں کہ آپ کو اب یہ پیروں والی بات چل رہی. اب آ جاؤں ایوب خان پہ. کراچی میں ایک خاتون تھی جن کا نام تھا عطیہ. وہ جو عطیہ خاتون تھیں وہ ایوب خان پاور میں آ گئے, مارشلہ لگ گیا, ٹھیک ہے. تو ایوب خان کو کسی نے بتایا کہ جی وہ جو عطیہ خاتون ہیں وہ کہیں بیٹھی ہیں اپنی سہیلیوں کے درمیان, یہ بڑا انٹرسٹنگ, اور سہیلیوں کے درمیان کہہ رہی ہے جو پٹھان آیا نا تھوڑے دن میں گولیاں کھائے گا, اس کو گولیاں لگیں گی. اب یہ بات اڑتی اڑتی کہیں پہنچ گئی ایوب خان تک. ایوب خان نیا ماشاء اللہ لگایا. ایوب خان نے قدرت اللہ شہاب کو, قدرت اللہ شہاب ایک بڑی شخصیت ہمارے ملک کی تاریخ کی, انہوں نے قدرت اللہ شہاب کو بھیجا عطیہ کے پاس, عطیہ نامی خاتون کے پاس, اور کہا کہ چیک کرو کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہے. تو وہ قدرت اللہ شہاب آئے وہ عطیہ کے پاس, اور عطیہ سے کہا کہ تم یہ آپ کیا باتیں کرتی ہیں ایوب خان صاحب کے بارے میں. تو عطیہ نے کہا وہ میں تو تمہیں یہ بتاتی ہوں کہ اس دن فلانی ٹرین جاری ہوگی, اس ٹرین میں 4 عورتیں بیٹھی ہوں گی اس وقت, اور وہ قتل کا منصوبہ بنا رہی ہے ایوب خان کا. اب ہلچل مچ گئی, ہلچل مچ گئی. قدرت اللہ شہاب نے کہا اس عورت کو تو بعد میں پکڑیں گے, ذرا چیک کرتے ہیں پہلے کی جو بات انفارمیشن دے رہی ہے صحیح ہے نہیں. جناب آپ کے خفیہ اداروں نے چھاپا مارا, پولیس نے اس ٹرین پہ اسی وقت, اور وہ 4 عورتیں پکڑی گئیں. وہ 4 عورتیں واقعی مارنے جا رہی تھی ایوب خان کو, اور جب ان کی اسٹیٹمنٹ لی تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو سکندر مرزا نے کہا تھا کہ ایوب خان کو مارو. اسی دن رات کو, اب یہ وہ ہے جو ہماری ہسٹری کے اندر بیان کرتے ہیں, مختلف لوگ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں, بیان کرتے ہیں, اسی دن رات کو ایوب خان نے سکندر مرزا کا تختہ الٹ دیا اور سکندر مرزا ہٹا دیے گئے. اسی طرح سے پھر ایوب خان کے دنوں میں ہی ایک اور خاتون جین ڈکسن, پتہ نہیں لوگوں کو یاد ہے یا آپ نے کبھی نام سنا کہ نہیں, جین ڈکسن ایک امریکن خاتون تھی. وہ 1956 میں 1956 میں اس خاتون نے ایک انٹرویو دیا امریکہ میں, اور کہا کہ 4 سال بعد جو الیکشن ہوگا, یعنی 1960 میں جو الیکشن ہوگا, اس میں ڈیموکریٹک نوجوان صدر منتخب ہوگا, لیکن وہ بہت جلدی مارا جائے, قتل ہو جائے گا. جین ڈکسن نے کہا. اچھا, اب 4 سال گزر گئے, وہ واقعی ڈیموکریٹک آ گیا اور جان ایف کینیڈی آ گیا. اچھا, لیکن لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پریڈکشن کی ہے, لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ دوسری پریڈکشن جو تھی کہ قتل ہو جائے گا, وہ کسی نے بات ہی نہیں کی. کینیڈی اتنا بھرپور قسم کا صدر. تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوا
2-3 साल गुजर गए। तो 1963 में अक्टूबर के महीने में उस औरत ने, जो जेन डिक्सन थी, उसने एक दोबारा बयान दिया और उसने कहा कि मैंने देखा है कि नाम की तख्ती उतारी जा रही है व्हाइट हाउस से कैनेडी के नाम की, तो बहुत जल्द कैनेडी खत्म हो जाएगा। ये उसने प्रेडिक्शन की और मैं वार्न कर रही हूँ कैनेडी को। उसके 1 महीने के बाद नवंबर 1963 में जॉन एफ कैनेडी को मार दिया गया। और इस हद तक उसने प्रेडिक्शन की जेन डिक्सन ने कि इसने जो कातिल था उसके अल्फाबेट्स तक बता दिए कि इसके शुरू का जो इसके नाम है, इसके नाम का पहला अल्फाबेट ये होगा कातिल का। जी हाँ, उसमें इनिशियल जरा, यानी इस हद तक। अच्छा, अयूब खान बड़े मुतासिर हुए थे, पूरी दुनिया में हलचल मचा दी ना जेन डिक्सन ने। तो जेन डिक्सन ने तो फिर निक्सन के साथ चली गई वो, फिर निक्सन फिर रेगन के साथ चली गई, फिर नैन्सी रेगन के साथ, वो पूरे उसके कॉलम छपते थे, कोई 300 दुनिया के मैगजीन्स में उसके वो लिखती थी। अयूब खान बड़े मुतासिर हुए। अब एक ब्यूरोक्रेट जो अयूब खान के साथ गए अमेरिका के दौरे पे, वो अपनी याददाश्तों में लिखते हैं कि अयूब खान का उसने जेन डिक्सन, अयूब खान बड़ा मिलना चाहते थे, तो अयूब खान जब मिले तो जेन डिक्सन से हैंडशेक किया, तो जेन डिक्सन ने ऐसे हाथ पकड़ के कहा कि 1968 में बस तुम जिस शान से आए उसी शान से चले जाओगे और बीच में इंडिया से लड़ाई होगी तुम्हारी, यानी 65 वाली लड़ाई की तरफ भी इशारा कर दिया। जेन डिक्सन ने ये उनके साथ जाने वाले ब्यूरोक्रेट्स अपने इंटरव्यूज में लिखते हैं और अयूब खान को उन्होंने की ये प्रेडिक्शन थी। फिर उसके बाद भुट्टो साहब, आपको पता ही है भुट्टो साहब को सुनूंगा, एम ए मलिक एक होते थे जबरदस्त जो बामिस्ट होते थे, भुट्टो साहब ने अपने हाथ का वो प्रिंट पूरा बना के भेजा एम ए मलिक को। एम ए मलिक ने देखा और देख के कहा कि इस आदमी को फांसी लगेगी। और भुट्टो साहब के साथ फिर हुआ। फिर जब भुट्टो साहब के आखिरी जो मुकदमा चल रहा था तो उन दिनों में मोहतरमा और बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो साहबा, उनके बारे में कहा जाता है वो गई शाह अब्दुल लतीफ बिठाई के मज़ार पे, वहाँ मजलूब मिले। मजलूब ने कहा कि तुम्हारे सर का साइन तो किया, यानी भुट्टो साहब तो गए, मुकदमा तुम हार गई, लेकिन बादशाह फिर तुम्हारे खानदान में आएगी, इशारा किया कि दोबारा होगा। और लेकिन फिर उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उसमें, वैसे ज़ियाउल हक साहब भी बड़े इस बुजुर्गों के और रूहानी शख्सियत के करीब जाते थे। हकीम ज़हीर होते थे और हकीम ज़हीर ये माल रोड लाहौर के पास कहीं उनकी रिहाइश का थी। और कहते हैं कि ज़ियाउल हक को उन्होंने इक़्तिदार में आने से बहुत पहले बता दिया था कि तुम पावर में आओगे, और ज़ियाउल हक साहब उनको बड़ा करीब अपने रखते थे। और जिस दिन प्लेन क्रैश होना था 17 अगस्त 1988 को, उस दिन वो हकीम जो हैं, हकीम ज़हीर साहब, सुबह से उनका टेलीफोन आ रहा था। और ये जो मैं रवायत बयान कर रहा हूँ ये मैं ज़ियाउल हक साहब की अहलिया बेगम शफीका ज़िया ने ये अपने इंटरव्यू में बात की जो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ये बताई बाद में बात कि हकीम जो थे, हकीम ज़हीर, उनका टेलीफोन आया और उन्होंने सुबह सुबह कहा कि आर्मी हाउस में कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ, जनरल ज़िया को कहो कि आज जहाज में ना बैठे, लेकिन जनरल ज़िया से निकल चुके थे, लेकिन वो बाकी जो आपसे शेयर नहीं कर सकते थे। बड़ी, उन्होंने कहा मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता, बड़ी कॉन्फिडेंशियल बात कहना चाह रहा हूँ। और इस हद तक वो पैनिक में थे हकीम जो थे हकीम ज़हीर, कि उन्होंने एक रवायत है, पता नहीं इजाजुल हक साहब इसको कहते हैं, लेकिन मैंने पढ़ा एक जगह पे कि उन्होंने यहां तक हुआ कि उनके इजाजुल हक साहब से और दूसरे जो भाई हैं उनके, इजाजुल हक साहब के जो बेटे हैं, उनसे कहा कि तुम भावलपुर चले जाओ। वो भावलपुर पहुंच जाओ, अगर वो भावलपुर चला गया गाड़ी में बैठ के, उनको वापस आने से रोको, ऐसा ना हो कि वापसी में कुछ हो जाए, खैरियत से चला तो गए कि जहाज में दोबारा न बैठे। लेकिन वो शायद वो बात भी वो आगे नहीं पहुंच सकी और शाम को खबर आ गई कि प्लेन क्रैश हो गया। और फिर थोड़ा सा आगे चलें, अगर कोई शेर है आपके पास। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगी, आप बात करें हमारे मौजूदा पॉलिटिशियंस में से ऐसे कौन कौन से पॉलिटिशियंस हैं जो स्ट्रॉन्ग वक्त ज्यादा मैंने ले लिया, और निसार साहब की वापसी होगी, अब मामला क्या बेहतर हो जाएंगे, तनाव कम हो जाएगा, इससे बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद से नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। चौधरी निसार साहब की वापसी होगी तो अब क्या अस्करी और सियासी इदारों के दरमियान तनाव कम हो जाएगा, मामला हल हो जाएंगे, इससे बात करेंगे। डॉक्टर, ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल करना था कि मौजूदा पॉलिटिशियन में से कौन कौन से ऐसे सियासतदान हैं जो पीरों पे बिलीव रखते हैं स्ट्रॉन्ग? जरा ये मैं आप चौधरी निसार वाली बात आपको बताता हूँ क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है कि चौधरी निसार इस वक्त वापस आए हैं। वापस आने के बाद क्या अस्करी की आदत, ये एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान जो तनाव था वो खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे? क्या इमरान खान को बना देंगे कि 14 अगस्त को ना निकलो, ताहिर कादरी साहब क्या करेंगे? लेकिन उससे पहले ये मैं पीरों वाली बात जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट वाकई के बगैर मुकम्मल नहीं होती। जब 88 में प्लेन क्रैश हो गया ज़ियाउल हक साहब का और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब का इक़्तिदार शुरू हुआ बारी बारी करके, तो उस वक्त ये हुआ कि यहां से मासेरा से कोई 45 किलोमीटर के फासले पे एक जगह है लिसा नवाब,
उससे आगे गाड़ी नहीं जाती। वो जो कस्बा है उस पर गाड़ी खड़ी करके पैदल चलना पड़ता है 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर पैदल चलते हुए चले जाएं तो वहां पे रहमतुल्लाह बाबा का एक आस्थाना है रहमतुल्लाह बाबा का। तो वहां पे जमाली साहब, जफरुल्लाह जमाली, उस वक्त वजीर आला, उस वक्त के वजीर आला, बाद में वजीर आजम भी बने वो, जफरुल्लाह जमाली साहब वहां गए। अपना किसी ने बताया होगा कि वहां आस्थाने पे जाएं, तो आस्थाने पे वहां पे जो बाबा जी, जो दीवाना बाबा थे, उनको बाबा तिनका भी कहते थे, बाबा तिनका, तो उनके जायरीन बैठते थे, उनके सामने जाके वो बाबा तिनका छड़ी मारते थे, डंडा 2-3 दफा कमर पे, और डंडा जो खाता था उसकी मुराद पूरी हो जाती, वो चला जाता था उठ के। तो जमाली साहब जाके बैठे, उन्होंने कहा जी मुझे बलूचिस्तान में क्राइसिस हो रहा है। वो तिनका बाबा ने 2 छड़ियां मारी, 2-3, जमाली साहब गए, उनका मसला हल हो गया। उन्होंने जाके बताया मियां नवाज शरीफ को, अच्छा मियां साहब थे वजीर आला पंजाब, उन्होंने कहा जी वो बाबा तिनका है, उसके पास जाएं। सरकारी हेलीकॉप्टर में मियां साहब बाकायदा वहां पे पहुंचे, पुलिसा नवाब के इलाके में वहां उतरे, वहां से 7 किलोमीटर चलते हुए आस्थाने पे गए, वहां वो तिनका बाबा बैठे हुए थे। तो तिनका बाबा से उन्होंने 3-4 छड़ियां मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने ऐसे टक 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 करके, उन्होंने कहा जा बादशाह, तू बादशाह है जा। मियां साहब, इलेक्शन हुआ, मियां साहब जीत गए। अच्छा, ये खबर पहुंची मोहतरम बेनजीर भुट्टो साहब तक कि जी ये कुछ तिनका बाबा हैं जो ऐसे छड़ी मारते हैं। अब 91 के अंदर मोहतरमा भी बाकायदा वहां पे पहुंची, और वहां पहुंचने के बाद बाबा तिनका के पास उनके साथ जो है वो मेरे ख्याल से राजा प्रवेश भी थे, बाकी उनके पूरी सीनियर लोग थे। तो वो वहां पे गई और बाबा जी ने बाकायदा मोहतरमा को भी छड़ी ऐसे करके उनको जब लगाई 2-3 बार, और फिर कहा कि हुन तेरी बारी है, जा खुश हो जाओ। और फिर मोहतरमा आगे वजीर। तो ये जो है ना, ये बड़ी हमारी आप हिस्ट्री में चले जाए। और फिर आगे मुशर्रफ साहब के बारे में भी, जनरल मुशर्रफ जब आए, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो पता नहीं फैसला साजी में वो किस हद तक, लेकिन वो यहाँ पे पीर मुकीब के पास जाते थे रावलपिंडी में, और बाकी शख्सियात के पास वो जाते थे, उनसे वो बड़ी सलाह मशवरा किया करते थे। किस हद तक वो सियासत में मशवरा होता था वो मैं नहीं जानता। लेकिन फिर जरदारी साहब आ गए, तो जरदारी साहब के तौक़ होता है पीर इजाज तो रही 5 साल ईवान सदर में, और पीर इजाज तो कहते थे कि मेरी वजह से ये आदमी बैठा हुआ है, तो जिस क्राइसिस में ये आता है तो मैं ही, और वो आपको पता है बकरे बकरे कटते थे वहां पे रोज ईवान सदर में। और वो 5 साल तक सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत वो पीर इजाज थे, जो जरदारी साहब के पीर थे। और जरदारी साहब के कई 8-9 साल से जरदारी साहब के साथ, और बाद में उन्होंने भी कुछ समय पहले भी बयान दिया कि $60 मिलियन जो स्विट्जरलैंड के हैं, जब तक मेरी दुआएं साथ हैं ये, और जब तक मैं फूंक मारता रहता हूँ, ये अकाउंट नहीं खोलेंगे, पैसा वापस नहीं आएगा। देखिए तो ये हमारे मशवरा तो करते हैं। वो प्रोफेसर रफीक अख्तर साहब जो बड़े आलिम दीन हैं और बड़ी जिनकी जो सूफी हैं, उनसे तो करते ही हैं। उनसे तो जनरल कियानी भी उनके पास जाते थे, जनरल कियानी भी जाते थे उनके पास इमरान खान भी गए, और उनसे जाहिर है कि इमरान का जहन मजहब की तरफ तो है बहुत ज्यादा माइल, तो लेकिन वो रफीक अख्तर साहब का नाम तो पब्लिक में है ना, क्योंकि जाहिर है वो पब्लिकली मिलते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, और बड़ी उनकी किताबें भी हैं रफीक अख्तर साहब की। लेकिन उससे हटके एक और शख्सियत भी है जिनसे इमरान मशवरा करते हैं। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जब क्राइसिस आता है तो एक और शख्सियत भी है, ये मशवरा करते हैं, वजीफ है इमरान, क्राइसिस के वक्त उनसे मशवरा कर लेते हैं। मतलब उस पर अमल कितना करते हैं कितना नहीं करते ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात चूंकि किसी से मशवरा करते हैं, किसी रूहानी शख्सियत से इमरान मशवरा जरूर करते हैं एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, और दरख्वास्त नहीं।